کہ جب خدا نے پکار کر کہا کہ اے میرے خدا تُونے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش گلیل کے شہر ناصرت میں ہوئی اور خدا جس شہر میں پیدا ہوا ناصرت میں وہاں کی زبان آرامی تھی اور یہ جو الفاظ کہے گئے یہ آرامی زبان کے تھے. اور جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو یروشلم کے باہر گلگتہ کے مقام پر خدا کو لٹکایا گیا اور موسٹلی یہودیوں کی زبان جو تھی وہ عبرانی تھی اور وہ آرامی سے نہیں جانتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ شاید یہ ایلیا کو پکار رہا ہے, شاید یہ ایلیا کو آواز دے رہا ہے, کیونکہ ان دنوں میں یہ بھی سوچا جاتا تھا کہ اگر کوئی بے گناہ ہو, اگر کوئی پاک ہو, راست باز ہو تو ایلیا اس کو چھڑانے کے لیے آتا ہے. تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایلیا کو پکار رہا ہے. تو ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ نے 3 کلمے سن چکے, پہلے 3 کلموں میں روشنی کا ذکر ہے اور چوتھے سے 7ویں کلمے تک تاریکی کا. اور تاریکی آپ جانتے ہیں کہ جب اندھیرا چھا گیا, تاریکی چھا گئی یا روشنی چھا گئی تو خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. خدا قادر مطلق خدا ہے, خدا الفا اومیگا ہے, خدا ابتدا انتہا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے یہ تخلیق کیا, کیونکہ خدا کریٹر گاڈ ہے, اس نے آسمان و زمین کو بنایا, اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اور آپ جس طرف نظر کریں اس کی الوہیت, اس کی معموری, اس کا فضل چاروں طرف آپ کو نظر آئے گا. پہاڑ اس کے ہیں, سمندر اس کے ہیں, دریا اس کے ہیں, روشنی اس کی ہے, اندھیرا اس کا ہے, اجالا اس کا ہے, تاریکی اس کی, یعنی سب کچھ اسی کا ہے. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. آمین. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں مرکز کی کتاب میں دیکھیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ جب چرواہے جو تھے رات کے ٹائم گلہ بانی کر رہے تھے, رات کے ٹائم, اور یکایک نور برسا. یعنی خداوند تاریکی کو نور میں بھی بدل سکتا ہے اور نور کو تاریکی میں بھی بدل سکتا ہے, کیونکہ وہ قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں پطرس کے تعلق سے اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں لکھا ہے کہ جب پطرس کو پکڑ کر لے گئے, شاگردوں کو پکڑ رہے تھے اور انہوں نے پطرس پر بھی ہاتھ ڈالا اور کلام میں لکھا ہے کہ پطرس 2 سپاہیوں کے پہرے میں زنجیروں سے جکڑا ہوا حوالات میں جیل میں سو رہا تھا. اور کلام میں لکھا یہ رات کا پہر تھا اور یکایک نور چمکا اور پطرس کو فرشتہ لے کر اس نے آزاد کر دیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. لیکن یہاں جو تاریکی کا عالم ہے, یہاں جو اندھیرا بیان کیا گیا ہے, اس اندھیرے سے مراد ہے گناہ, بدی. اندھیرے سے یہاں سے مراد ہے گناہ اور بدی. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا, خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا. آپ اگر سٹارٹ میں پیدائش میں بھی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب خدا ٹھنڈے وقت میں آدم سے باتیں کرتا تھا اور آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا کے درمیان میں اور آدم کے درمیان میں جدائی آ گئی. یعنی خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا, خدا ناپاکی کو دیکھ نہیں سکتا. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جو ہی اندھیرا چھا گیا تو یہ تاریکی جو ہے یہ گناہ کو ظاہر کرتی ہے, بدی کو ظاہر کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں اگر آپ خدا کی حالت کو دیکھیں کہ یہ تیسرے پہر میں تاریکی کے عالم میں اندھیرے میں خداوند یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں, زخموں سے چور چور ہیں, ہاتھ اور پاؤں میں کیل جڑے گئے ہیں, پسلی میں بھالا مارا گیا ہے, سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہے, جسم پر ایک کام 40 کوڑے لگے ہیں اور بدن چھننی ہوا ہوا ہے. اور اس وقت خدا یسوع مسیح خود نہیں بلکہ ایک آدم کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح آدم بن کر ہمارے لیے آیا, انسان بن کر آیا, اس نے تخت چھوڑ کر فرش قبول کر لیا. کس لیے؟ ہمارے گناہوں کے لیے. اور اس وقت جو خداوند کو وہ پکار رہا ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی اس وقت اس کا رابطہ جو ہے وہ باپ سے نہیں ہے, اس وقت اس کا رابطہ باپ سے نہیں بلکہ خدا سے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے حالہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا, شاگردوں کو سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. لیکن یہاں ایسے آدم, ایسے انسان, اس کے اوپر بدیوں کا بوجھ ہے, گناہوں کا بوجھ ہے, لعنتوں کا بوجھ ہے, گندگی کا بوجھ ہے اور ہر قسم کی
नापाकी का बोझ है, यहाँ तक कि खुदावंद खुद नापाक बना हुआ है। खुदावंद खुद सर से पांव तक उसके ऊपर नापाकी ही नापाकी, गंदगी ही गंदगी है। और वह गंदगी किन की है? हमारी। और वह गंदगी किन की थी? हमारी। कलाम में लिखा है पतरस के पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद खुद हमारे गुनाह को अपने बदन पर लेगा। पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के इतबार से मरकर रास्तबाजी के इतबार से जिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और कुलसियों के पद में लिखा उसके तीसरे बाब में उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह लानती बन गया। अब अंदाजा करने के किस कदर गुनाह होंगे। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह लानती बन गया और उसने हमें मोल देकर शरीयत की लानत से आजाद किया। चनाचा लिखा है कि जो लकड़ी पर लटका है वो लानती है, जो लकड़ी पर लटका है वो लानती है। यानी यीशु मसीह लानती बन गया। उसके ऊपर पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ, हमारी कमजोरियों का बोझ, हमारी सारी तकलीफों का बोझ, हमारे सारे गुनाहों का बोझ को लेकर खड़ा है। तो इस सूरत में कैसे वो कह सकता है ऐ बाप? क्योंकि बाप वो उनका है जो उसकी मर्जी पर चलते हैं। बाप वो उनका है जो उसके रास्तों पर चलता है। यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब में लिखा है कि अगर कोई रास्तबाज हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। लेकिन यहाँ तो खुदा यीशु मसीह आदम की नुमाइंदगी करके खुद पापी बना हुआ है, खुद गुनाहगार बना हुआ है, खुद उसने हमारी निजासत को ले लिया है, उसने हमारी नापाकी को अपने ऊपर ले लिया है। और यशायाह की किताब उसके 53 बाब में लिखा है कि ना कोई शक्ल और सूरत, ना कोई खूबसूरती के हम उस पर निगाह करते, ना हुस्न जमात के हम उसके मुश्ताक होते। वो आत्मा में हकीर और मरदूद, मरने का नाक, रंज का आशना हुआ और हमने उसकी कोई कदर ना जानी, उसकी तहकीर की। तो भी उसने हमारी मशक्कतों को उठा लिया और हमारी खताओं के बाइस घायल किया गया, हमारी बदकारियों के मुताबिक कुचला गया। हम में से हर कोई अपनी राह को भटके हुए थे, लेकिन वो बेजुबान बर्रे की तरह, बाल कुतरने वाली भेड़ की तरह चुपचाप जुल्म सहता रहा। किसके लिए? ये गुनाह किसके थे? ये बदकारियां किसकी थी? ये सारे गुनाह, बदकारियां, ये सारी लानतें हमारी थी जो यीशु मसीह लिए में लटका हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ने उसको छोड़ दिया है। ये वक्ती राब्ता खत्म हुआ था, ये वक्ती तौर पर रात, क्योंकि अगले अगर आप कलमे में देखें तो वो कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये जुदाई जो है फॉर द टाइम बीइंग है, ये जुदाई जो है वो थोड़ी देर के लिए। अगर आप ज़बूर 22 में देखें तो दाऊद कहता है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे दुश्मनों ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। दाऊद जो खुदा का परस्तार है, जो खुदा के लिए जंग लड़ता रहा, जो खुदावंद पर भरोसा रखता है, जो खुदावंद को कहता है कि खुदावंद तू मेरी उम्मीदगाह है, खुदावंद तू मेरा मोहकम किला है, खुदावंद तू मेरा छुड़ाने वाला है, खुदावंद तू मेरा बचाने वाला है। लेकिन इस वक्त जब उसने चारों अतराफ से अपने आप को दुश्मनों में देखा, इसे पिछले पहले में मैं बता चुकी हूँ कि कभी इसे साउल की तरफ से खतरा, कभी अमलीकियों की तरफ से खतरा, कभी फिलिस्तीनियों के साथ वो लड़ रहा है, कभी अपने ही उसके खिलाफ हो गया है, अपना ही बेटा अबीसलोम उसके खिलाफ। यानी चारों अतराफ से जब वो घिर गया तो इंसान होने के नाते उसने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये दाऊद कह रहा है। लेकिन जैसे उसने फील किया कि खुदा कभी नहीं छोड़ सकता, खुदा हमेशा मेरे साथ रहता है, हमेशा मेरी कुव्वत है, हमेशा मेरी पनाह है, इसलिए ज़बूर 23 में कहता है, किस को 23 को बुलाता है? बोले जी, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। इंसान वक्ती तौर पे परेशान हो सकता है क्योंकि हम कमजोर हैं। और कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में कि जब वो आदम की सूरत में इस जहां में था, इस दुनिया में था, तो जब वो अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर दुआ कर रहा था तो कलाम में लिखा, उसने कहा कि उसने नहायत गमगीन होकर अपने शागिर्दों से कहा कि मैं बहुत गमगीन हूं, यहां तक कि मरने तक नौबत आ पहुंची है। क्योंकि इंसान है, इस वक्त आदम के गुनाह उस पे लादे में है, आदम की नुमाइंदगी कर रहा है, इसलिए दाऊद भी थोड़ी देर के लिए खुदा की वफादारी को भूल गया। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, यशायाह की किताब उसका
49 चैप्टर उसमें लिखा है कि ऐ सायून, सायून कहती है कि खुदावंद तू मुझे भूल चुका है। सायून कहती है कि खुदावंद तूने मुझे तर्क कर दिया है, खुदावंद तूने मुझे छोड़ दिया है, तू मुझे भूल गया। लेकिन खुदावंद कहता है कि ऐ सायून, क्या ये मुमकिन है कि माँ अपने शीर और बच्चे को भूल जाए? क्या माँ अपने रहम के बच्चे पर तरस ना खाए? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारी शक्ल अपनी हथेली पर खोद रखी है। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर वो हमें कैसे भूल सकता है? वक्ती तौर पर हम अपने गुनाहों में, अपनी गलतियों में, अपने कसूरों में, अपनी परेशानियों में घिर जाते हैं, लेकिन याद रखें कि खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है, खुदावंद हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। कभी ये ना कि खुदावंद ने मुझे छोड़ दिया है। हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम थोड़ी देर के लिए भरोसा उठा लेते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ साथ चलता है, खुदावंद हमेशा हमारी निगरानी करता है। और खुदावंद कहता है कि ऐ इस्राएल, ऐ याकूब, मैंने तुझे जमीन की इंतहा से उठाया है, मैं तेरे बदन से नहीं तेरा वाक़ हूँ, मैं तेरे बुढ़ापे पर तुझे लिए उठाए फिरूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं तुझे तनहा ना छोड़ूंगा, मैं तेरी हिम्मत हूँ, मैं तेरी कुव्वत हूँ, मैं तेरा निगहबान हूँ। तो कैसे खुदावंद छोड़ सकता है? ये जो रास्ता था, ये जो सिलसिला था, ये फॉर द टाइम बिंग था। इसलिए खुदावंद ने उसे कहा कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन खुदावंद छोड़ सकता है? कभी नहीं छोड़ सकता। हम बेवफा हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो सकता, वो वफादार खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ख़ुरूज की किताब में देखें, तारीखी के ताल्लुक से देखें कि जब मूसा और फराउन का कंपटीशन, मुकाबला या गुफ्तगू चल रही थी, तो कलाम में लिखा जब खुदावंद की तरफ से फराउन का जब दिल सख्त हो गया तो आफतें भेजी गई। किस किस को पता है? आफतें भेजी गई। उनमें से एक आफत का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। कलाम में लिखा है कि जब फराउन, जब कोई आफत आती थी खुदा की तरफ से, तो वो कहता था मूसा मुझे छुड़ा ले, अब मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा, अब मूसा मुझे बचा ले, अब मैं तेरे लोगों को जाने दूंगा। उसके बाद फिर वैसा, फिर खुदा को भूल जाता था, और उसके बाद ऐसा हुआ कि ओलों के बाद उसने फिर ना जाने दिया। फिर खुदा ने कहा कि ऐ मूसा, फराउन से कह कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो मेरी कुर्बानी करें, मेरे लिए कुर्बानी करें, मेरी इबादत करें, मुझे सिजदा करें, मेरी तारीफ करें, और उसे जाके क्या मेरे लोगों को छोड़ दे। लेकिन उसके बावजूद उसका दिल फिर सख्त हो गया। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी को उनके मिस्र की तरफ बढ़ा दे। और जैसे ही खुदावंद के कहने पर मूसा